لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، اما بعد فقد قال امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام: فزت برب الکعبہ۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام جب آپ کے سر پہ ملعون ابن ملعون نے ضربت ماری تو امام نے فرمایا: فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر! ہمارا ایسا رہبر، ہمارا ایسا قائد کسی قوم میں بھی نہیں ہے۔ میرا لاکھوں سلام اس ذات مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام میں کہ جو محراب عبادت میں جاتا ہے تو عبادت اس طریقے سے کرتا ہے کہ دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں۔ جو بستر رسول پر جاتا ہے تو اس طریقے سے آرام فرما رہا ہے کہ جیسے لوگ رات بھر سمجھتے رہے کہ یہ رسول اسلام سو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! وہی مولا ہے۔ ان کے بچے آج پریشان ہیں، ضربت آپ کے لگتی ہے، ملعون ابن ملجم آپ کے سر اقدس پر نماز کی حالت میں ضربت لگاتا ہے۔ اللہ اکبر! ادھر ضربت کا لگنا تھا کہ جناب جبرائیل کی آواز گونجی: قد قتل امیر المومنین، امیر المومنین قتل کر دیے گئے، امیر المومنین مار دیے گئے۔ عزادارو، تاریخ بتاتی ہے کہ تمام مومنین جیسے ہی مومنین نے سنا، ایک دفعہ مسجد کوفہ کی طرف دوڑے۔ اللہ اکبر! سرو سینہ پیٹ رہے ہیں، سرو سینہ پیٹ رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں: ہائے میرا قائد، ہائے میرا رہبر! اللہ اکبر! تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسن، امام حسین، جناب عباس سرو سینہ پیٹ رہے ہیں، گھر میں بیٹیاں ہیں، ماتم کر رہی ہیں: ہائے میرا بابا! بابا کو اس ملعون نے کیوں سر اقدس پر تلوار ماری؟ ہائے میرا بابا! ہائے میرا بابا! ہائے میرا بابا! یہ بیٹیاں بیان کرتی ہیں۔ اللہ اکبر! تاریخ بتاتی ہے کہ جناب امام حسن اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام گلیم میں گلیم گھر مسجد کوفہ سے گھر کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر! جناب جبرائیل سرو سینہ پیٹ رہے ہیں، مومنین سرو سینہ پیٹ رہے ہیں۔ امام حسن کے آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، امام حسین سینہ پیٹ رہے ہیں، جناب عباس سرو سینہ پیٹ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! تاریخ بتاتی ہے کہ امام نے ایک دفعہ ہاتھوں کو جوڑا، مومنین سے کہا کہ مجھے معاف کریے گا، لیکن اب آپ آگے نہ جائیے، آپ کی زحمتیں تمام، اس لیے کہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ ہماری بیٹیاں جو گھر میں آہو فغا کر رہی ہیں، آپ کے کانوں میں آوازیں پہنچے، نامحرم کے کانوں میں آوازیں پہنچیں، اس لیے کہ ہماری بیٹیاں گھر میں آہو فغا کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! تاریخ بتاتی ہے کہ ایک دفعہ گلیم گھر کے اندر جاتی ہے، امام حسین جناب مولائے متقیان کے زہر اتنا زیادہ وہ زہر شدید ہے کہ تمام طبیب بلائے گئے، کوئی تمام طبیبوں نے انکار کر دیا کہ یہ زہر آلود اتنی زیادہ زہر میں بجھائی ہوئی
हुई है कि जिसका असर जो है गायब होना, गायब करना हमारे बस की बात नहीं है। अल्लाह अकबर। तारीख़ बताती है कि इमाम जो है एक एक बच्चे से वसीयत कर रहे हैं कि देखो ख्याल रहे, देखो जो है ओसी को माँ हम वसीयत करते हैं, तुम लोगों से अपने बच्चों तुम लोगों से वसीयत करते हैं और अपने अहल से वसीयत करते हैं कि देखो तकवा अख्तियार करते रहना, ऐसा ना हो कि दुनिया में तुम महू हो जाओ। अल्लाह अकबर। तारीख़ बताती है कि इमाम आगे बढ़ते हैं और देखो ए हसन ए हुसैन, ए मेरे बच्चों ख्याल रखना, कहीं ऐसा ना हो कि जो है कोई यतीम अपने घर में भूखा पड़ा हुआ हो और तुम सैर हो जाना कि देखो यतीमों का ख्याल रखना। ऐसा कहीं ना हो कि जो यतीम हो वो घर में भूखा सो जाए। ए मेरे बच्चों देखो पड़ोसियों का ख्याल रखना, इत्तेहाद कायम रखना, इसलिए कि पड़ोसी जो है, पड़ोसी के हुकूक हम पर वाजिब हैं। अल्लाह अकबर। कभी जनाब ज़ैनब को बुलाते हैं, जनाब ज़ैनब से वसीयतें कुछ शुरू करते हैं। जनाब ज़ैनब आओ बुका कर रही हैं, उम्मे कुलसूम के आंसू जारी हैं। ए बाबा आप किसके सहारे मुझे छोड़ के जाते हैं? ए बाबा आपके बाद जो है मैं कैसे जिंदा रहूँगी? तारीख़ बताती है कि जनाब मौलाए मुत्तक़ियान वसीयतें कर रहे हैं। जनाब ज़ैनब हैं, एक दफ़ा इमाम हसन को बुलाया, एक दफ़ा इमाम हुसैन को बुलाया, तमाम बच्चों को इकट्ठा किया, एक दूसरे के हाथ में दिया, आज़ादार हो। तारीख़ बताती है कि एक दफ़ा ज़ैनब से मुखातिब हुए, ए बेटी ज़ैनब देखो ख्याल रहे ये हुसैन तुम्हारे हवाले है, ये हुसैन तुम्हारे हवाले है, इसलिए कि उस वक्त हसन ना होंगे, मैं ना हूँगा, तुम करबला में होगी। अरे मेरे बच्चे हुसैन के कत्ल के बाद अरे तुमको ये काफिला, लुटा हुआ काफिला मदीने तक लाना है। अरे तुम्हें इस दीन के लिए सख्तियाँ झेलना है। अरे बाबा, अरे बेटी, इस दीन के लिए जो है तुम्हारे सर से चादरें छीनी जाएंगी। देखो बेटी सब्र करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम जो है तुम्हारे सब्र ना करने की वजह से दीन में जो है कोई रखना पड़ जाए। दीन को इस तरीके से फैलाना है। एक एक बच्चे को वसीयत करते हैं, जनाब उम्मे कुलसूम से वसीयत करते हैं, ए उम्मे कुलसूम देखो अब्बास तुम्हारे हवाले हैं। आज़ादार तारीख़ बताती है कि एक एक वसीयतें जो है इमाम करते रहे। 3 दिन तक के इमाम जो है तकलीफ से कराहते रहे। अल्लाह अकबर। तारीख़ बताती है कि इमाम 3 दिन बराबर जो है वो तकलीफ में मुब्तला रहे। अल्लाह अकबर। तारीख़ बताती है कि आखिरी तीसरा दिन अब क़यामत का गुज़रा। अल्लाह अकबर। वसीयतें जो है आप जब कर चुके, एक एक बच्चे को वसीयतें कर ली, आज़ादारो करबला का वाक़या बयान कर दिया और ये भी फरमाते जाते हैं, ए मेरे बच्चों तुम्हारे नाना ने ये फरमाया था कि देखो पड़ोसियों का ख्याल रखना, देखो हमसायों का ख्याल रखना, देखो अपने बच्चों का ख्याल रखना। अल्लाह अकबर। तारीख़ बताती है कि एक दफ़ा जो है ये वसीयतें कर ही रहे थे। तारीख़ बताती है कि इमाम की रूह कफ़स उनसरी से परवाज़ कर गई। इधर जो है कफ़स उनसरी से रूह का परवाज़ होना था। जनाब हसनैन सीना पीट रहे हैं, सर
पीट रहे हैं। जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम अज़ादारो सरोसीना पीट रही हैं। अज़ादारो तारीख बताती है कि एक दफ़ा इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाजा तैयार किया और इमाम ने अपनी वसीयत में फरमाया था कि देखो ए हसन और ए हुसैन, देखो मेरे जनाजा आगे से खुद बखुद उठेगा, पीछे से तुम लोग सहारा दे देना, पायती से सहारा दे देना। ये क्या वजह थी? इसलिए कि मौलाए मुत्तकियान जिब्राइल के उस्ताद थे, मलाइका के उस्ताद थे। अज़ादारो उनके जनाजे में अंबिया औसिया सब रहेंगे। अज़ादारो तारीख बताती है कि जनाजा जब तैयार हो गया, घर से किस तरीके से जनाजे को इमाम निकालें। तारीख बताती है कि किसी तरीके से जनाब इमाम हसन और इमाम हुसैन ने जनाजे को निकाला। बीबियां गश पे गश खा रही हैं, बेटियां गश पे गश खा रही है। आए मेरा बाबा, आए मेरे बाबा, मैं किसके सहारे जियोगी। आज़ादारो तारीख बताती है कि जिस तरीके से इमाम ने वसीयत की थी उसी तरीके से आगे से जनाजा सरहाने से खुद बखुद उठ रहा था। आज़ादारो हसनैन सरोसीना पीट रहे थे, जनाब अब्बास सरोसीना पीट रहे थे। अरे नजफ की तरफ ये जनाजा चला। आज़ादारो बड़ा बड़ा क़यामत का जुमला है। आज़ादारो जैसे ही नजफ पे कब्र की तरफ चले, कब्र खुदी हुई थी। आज़ादारो जैसे ही कब्र के नजदीक ले जाया गया, आज़ादारो एक दफा कब्र से 2 हाथ नमूदार हुए। अरे लाओ लाओ मेरे बच्चों, मेरे वसी को लाओ। आज़ादारो एक दफा जनाबे वो जो हाथ बरामद हुए थे, जनाजे को लिया और कब्र में रखा। आज़ादारो तारीख बताती है कि किसी तरीके से इमाम के कब्र को पर मिट्टी डाली गई। आज़ादारो इमाम गश पे गश खा रहे हैं, हसनैन को गश पे गश आ रहा है। आज़ादारो जब इमाम को जनाब हसनैन दफन करके नजफ से वापस आ रहे थे, अज़ादारो वो आपको खुदा नसीब करे कि आप ज़ियारत के लिए जाएं। वो मुकाम जहाँ पर इमाम का जनाजा रखा गया, जहाँ पर क़याम किया गया, वो सभी मुकाम मौजूद हैं। अज़ादारो तारीख़ बताती है कि इमाम दोनों शहज़ादे जा रहे थे, देखा कि अपने बाबा को दफन करके जा रहे हैं। देखा कि एक ज़ईफ़ करा रहा है। तारीख़ बताती है कि इधर ज़ईफ़ की ये परेशानियां इमामों से बर्दाश्त ना हुई। बैठ गए, ए बेटा, ए ज़ईफ़, ए बुजुर्गवार, आप काहे परेशान हैं, किस वजह से परेशान हैं। कहा कि बेटा हमें लगता है कि तुम भी परेशान हो, तुम जाओ, मेरी परेशानी का हल मेरी हर परेशानी का हल नहीं मिलना लग रहा है कि मेरा जो मदद करता था, मेरा जो सहारा देता था, वो इस दुनिया में नहीं रहा। कहा ए बुजुर्गवार, आप बताइए किसका इंतजार कर रहे हैं। कहा आपको परेशानी क्या है, हो सकता है कि मैं आपकी परेशानी को दूर कर दूं। आज़ादारो तारीख बताती है कि एक दफा उस ज़ईफ़ ने कहा कि क्या बेटो मैं क्या बताऊं, अरे जो मुझको रिस्क पहुंचाता था 3 दिन से उस शख्स ने मुझको रिस्क नहीं पहुंचाया है। अरे मैं भूखा हूँ। अज़ादारो तारीख बताती है कि इमाम ने कहा कि कि कभी तुमने उनका नाम पूछा कि वो कैसे थे। अज़ादारो तारीख बताती है कि एक दफ़ा जब ये जुमला वो जुमला ज़ईफ़ से कहा तो उस शख्स ने कहा कि कभी हमने बहुत नाम पूछने की कोशिश की, लेकिन
انہوں نے یہی فرمایا کہ یہ سمجھ لو کہ ایک غریب غریب کے ساتھ میں بیٹھا ہے، ایک یتیم کے ساتھ میں بیٹھا ہے۔ عزادارو امام سمجھ گئے، امام نے فرمایا ارے وہ میرا کوئی اور نہیں بلکہ میرا بابا تھا، ابھی ہم جو ہے دجل سے دفن کر کے چلے آ رہے ہیں۔ عزادارو تاریخ میں ملتا ہے اتنا سننا تھا، اس شخص نے ایک پتھر اٹھایا، اپنے سر پہ مارا، کہا کہ جب ایسے مومن کو اس دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے، ایسے متقی کو اس دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے، جب وہ نہیں رہا تو مجھے کیا حق ہے کہ اس دنیا میں رہ جاؤں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔